اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پرائم نیوز میں آج بات کرتے ہیں کہ اب تک شیطان، گستاخ عورت، ملعون، مردود نپور شرما گرفتار نہیں ہوئی، مگر محمد زبیر گرفتار ہو گیا۔ جی ہاں، محمد زبیر گرفتار ہو گیا۔ اب محمد زبیر کو دلی پولیس اسپیشل سیل نے کارروائی کرتے ہوئے بغیر نوٹس کے گرفتار کر لیا۔ یہ وہی محمد زبیر ہے جو آلٹ نیوز کے شریک ہے، بانی ہے، اور جنہوں نے ملک کی ایک شیطان عورت، جس نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو محمد زبیر نے زبردست انداز میں ایسی ٹویٹر پر ٹرینڈ چلائی تھی، مہم چلائی تھی کہ پھر عرب ملک جاگ گئے تھے، اور پھر ایسے جاگے تھے کہ مودی جی کو عباس یاد آ گیا۔ تو خیر، اب محمد زبیر کا قصور یہ ہے کہ اس شیطان عورت کے کارنامے اور مودی سرکار اس پر کارروائی نہیں کر رہی ہے، اور ملک میں ایسا چل رہا ہے۔ یہ انہوں نے ایسا زبردست انداز میں اپنی صلاحیتوں کے ساتھ میں کام کیا تھا کہ نپور شرما کو عالم اسلام تک پہنچایا تھا کہ یہ وہ شیطان عورت ہے جس پر ہمارے یہاں کی حکومت کارروائی نہیں کر رہی ہے۔ جی ہاں، اور آج بھی کارروائی نہیں ہوئی، پورا ملک جل گیا۔ نپور شرما اس شیطان عورت کی گرفتار کرنے کی ڈیمانڈ کو لے کر 500-600 جوان جیل میں چلے گئے، مگر لاڈلی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی۔ اب محمد زبیر کو گرفتار کیا گیا ہے، مذہبی جذبات بھڑکانے کا ان پر الزام ہے۔ تو اب محمد زبیر کی گرفتاری پر کس نے کیا کہا؟ کانگریس نے کیا کہا؟ جی ہاں، ایسے ہی تمام سیکولر پارٹیوں نے کیا کہا، صحافیوں نے کیا کہا، انصاف پسند اچھے سچے ہندوؤں نے کیا کہا، اور مودی اور شاہ کا ہٹلرانہ انداز پر اب لوگ کیا کیا لکھ رہے ہیں، یہ ساری تھوڑی سی تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس انداز میں کوئی بول نہیں پاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ناویکا کماری کے شو پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پیغمبر محمد کی شان میں توہین آمیز ریمارکس کیے تھے نپور شرما نے۔ نپور شرما کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے پورے ملک میں آگ لگی، 500 جوان جیل کی سلاخوں میں چلے گئے، کئی لوگوں پر FIR درج ہو گئی، مگر لاڈلی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئی ہے۔ یعنی آپ مودی اور BJP کی مکاری کو آپ سمجھیے کہ ایک عورت جس کی وجہ سے ملک بدنام ہوا، جس کی وجہ سے لاکھوں ہندوستانیوں کو نقصان پہنچا، باہر ملکوں میں ان لوگوں نے ہمارے ملک پر تھوکا، جس کی وجہ سے ملک بدنام ہوا، ملک کی سمپتی کو نقصان پہنچا، اس ایک شیطان عورت کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور اس ایک شیطان عورت کی پول جس نے کھولا، بلکہ اس کی پول نہیں، حکومت کی پول جس جوان نے بے باکی کے ساتھ کھولا، اور اس کا قصور یہ بھی ہے کہ صرف اس نے نپور شرما کی پول نہیں کھولا، یہ کبھی بھی اکثر
बीजेपी का आईटी सेल जो गंदगी फैलाता रहता है, जो हकता रहता है, घान नफरतें फैलाता रहता है, और फिर बीजेपी की खरीदी हुई गोदी मीडिया जो है वो जो नफरतें फैलाती रहती है, झूठी खबरें फैलाती रहती है, तो मोहम्मद ज़ुबैर इनकी सबकी पोल खोलता रहता है। आखिर क्या हुआ कि मोहम्मद ज़ुबैर को बगैर किसी नोटिस के दिल्ली स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए मजहबी जज्बात के भड़काने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और मोहम्मद ज़ुबैर पर 295 यानी जानबूझकर और बदनीयती पर मबनी फेल, जिसका मकसद किसी भी तबके के मजहब या मजहबी अकायद की तौहीन करना, ये इल्ज़ाम उस पर लगाया गया। यानी नूपुर शर्मा लाडली है, शहीद है, बड़ी शरीफ औरत है, कमीनी शैतान नहीं है, जिसने कोई मजहबी जज्बात नहीं भड़काया, जिसकी वजह से मुल्क में कहीं आग नहीं लगी, जिसकी वजह से मुल्क की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। नूपुर शर्मा शरीफ औरत है, बड़ी अच्छी औरत है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। चलिए आइए, ये अब तक तो मैं बोल रहा था, आइए अब किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी पर सहाफ़ी समृद्धि, ऐसा नहीं है कि मुल्क से इंसाफ पूरा ख़त्म हो गया या एकता सच्चाई ख़त्म हो गई, अभी भी सच्चे अच्छे हिंदू बड़ी तादाद में, शैतानी तादाद 3% है, बड़ी तादाद में अच्छे लोग हैं। तो सहाफ़ी समृद्धि ने कहा कि वाह भाई वाह, नूपुर शर्मा आज़ाद है, जी हाँ, यति नरसिंहन शैतान आज़ाद है, बजरंग मुनि आज़ाद है, आनंद स्वरूप आज़ाद है, साक्षी महाराज खबीस वो भी आज़ाद है, साध्वी प्रज्ञा आज़ाद, राम भक्त गोपाल आज़ाद, मगर ज़ुबैर को गिरफ्तार कर लिया। ये एक हिंदू पत्रकार ने, जर्नलिस्ट ने बात कही है। जी हाँ, हो सकता है अगर कोई इतनी आज़ादी के साथ मुसलमान बोले तो मोहम्मद ज़ुबैर की तरह उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी पूरा हिटलराना और तानाशाही अंदाज चल रहा है। जर्नलिज्म को या तो आप हमारी गोद में बैठ जाओ, पैसा ले लो, इज्जत ले लो, शोहरत ले लो, या तो फिर ईडी लग जाएगी, या तो आपको जेल की सलाखों में ठूस दिया जाएगा। बस यही तरीक़ा अभी फ़िलहाल इख्तियार किया जा रहा है। अदालतें, कानून, संविधान पूरी तरीके से ऐसा लगता है जैसे ख़त्म किया जा रहा है। तो अब सहाफ़ी समृद्धि ने कहा कि ये सब आज़ाद है, ये सब शरीफ लोग हैं। बोला नूपुर शर्मा शरीफ, नरसिंहन शरीफ, कभी मजहबी जज्बात नहीं भड़काते, बजरंग मुनि, आनंद स्वरूप, साक्षी महाराज, साध्वी प्रज्ञा, ये सब शरीफ लोग हैं, सब आज़ाद है। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर, जिसने इनके बारे में दुनिया को ये बताया कि हमारे मुल्क में ऐसे हिटलर हुकूमत और तानाशाही हुकूमत बैठी हुई है कि ऐसे लोगों को आज़ाद रख रही है, गले लगा रही है, इनका सत्कार और सम्मान कर रही है, इनको अपने बड़े बड़े ओहदे दे रही है, तो हुकूमत की मक्कारी और गद्दारी को मोहम्मद ज़ुबैर ने पूरी दुनिया तक पहुँचाया। ये कसूर है मोहम्मद ज़ुबैर का। लेकिन अब मोहम्मद ज़ुबैर के लिए ट्विटर पर ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है कि आई स्टैंड विथ मोहम्मद ज़ुबैर, आई स्टैंड विथ ज़ुबैर, आई स्टैंड विथ ज़ुबैर। क्या हम ज़ुबैर के साथ खड़े हैं, और ज़ुबैर की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। कांग्रेस के एक सीनियर लीडर है शशि थरूर ने भी ट्वीट करते हुए ज़ुबैर को गिरफ्तार करना पत्रकारिता पर, सच्चाई पर हमला बताया है और कहा कि इसको फ़ौरन रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत कम अब ऐसे लोग बचे हैं जो सच्चाई और हकाइक की जांच पड़ताल करते हैं, उन्हीं में एक मोहम्मद ज़ुबैर का आल्ट न्यूज़ है। समाजी कारकुन संदीप सिंह ने कहा कि ज़ुबैर नफरत के खिलाफ आवाज़ है, उन्हें रिहा किया जाए। ऐसे ही आल्ट न्यूज़ के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने एक अलग केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लाजमी नोटिस भी नहीं दिया गया। सिन्हा ने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने ट्वीट किया कि बार बार की दरख्वास्त के बावजूद हमें FIR की कॉपी तक नहीं दी जा रही है। यानी आप अंदाज़ा लगाए किस तरीके से हिटलराना और तानाशाही अंदाज चल रहा है। तो खैर उन्होंने आगे बहुत सारे लोगों ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अजीब चीज़ है कि यति नरसिंहन, बजरंग मुनि, स्वामी आनंद सब आज़ाद है, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाले, है ना। और उन्होंने कहा कि ये FIR योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक हिंदू तंजीम के सरबराह ने खैराबाद थाने में दर्ज कराई। तो चलिए जनाब, दिल्ली में रहने वाला मोहम्मद ज़ुबैर, FIR दर्ज हो रही है योगी आदित्यनाथ के इलाके में, और वो भी एक हिंदू तंजीम, यानी शरीफ तंजीम होगी, उन्होंने FIR दर्ज करवाया, तो उसकी FIR पर कार्रवाई होते हुए मोहम्मद ज़ुबैर गिरफ्तार हो रहा है। लेकिन पूरी दुनिया की FIR और डिमांड के बावजूद भी नूपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हो रही है।
मोदी जी, वाजपेयी हो, दुनिया देख रही है और दुनिया थूक रही है, पूछ रही है कि ये हिटलराना अंदाज, तानाशाही वाला अंदाज नहीं है तो और क्या है। तो मोहम्मद जुबैर के लिए अब तमाम तरफ से आवाज़ें उठ रही है। ऐसी आपने देखा होगा कि हिटलराना अंदाज और इख्तियार किया गया और अब मुंबई से लेकर दिल्ली तक लोग उसके लिए उड़ गए हैं। तीस्ता सितलवाद, इसे भी गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया। वजह क्या? तीस्ता सितलवाद भी जो है ऐसे ही बेबाक औरत है, बेबाक लेडी है। अच्छा कमाल की बात है, मुसलमान नहीं है। अरे मेरे भाई, हिंदू भी बड़ी तादाद में ऐसे मौजूद है जो इन हिटलरों के खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तीस्ता सितलवाद ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक के लिए लड़ाई लड़ती थी, आखिर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी को भी लेकर मुंबई में ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, ऐसे ही बेंगलोर में ज़बरदस्त आंदोलन हुआ और बेंगलोर के मुल्क के अलग अलग, लखनऊ में और दिल्ली में अलग अलग तरफ आंदोलन हुआ है और तमाम लोग भी तीस्ता सितलवाद की भी गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। यानी ये चीज़ें बता रही है कि मोदी एंड शाह, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार हर उस आवाज़ को कुचल देना चाहती है, दबा देना चाहती है जो उठ रही है, हर उस जबान को काट देना चाहती है जो इनकी गलत नापाक नीतियों के खिलाफ बोल रही है, हर उस हाथ को काट देना चाहते हैं जो इनके खिलाफ लिख रहे हैं, हर उस आँख को फोड़ देना चाहते हैं जो इनके खिलाफ देखकर मुंह खोल रही है। लेकिन ये हिटलराना अंदाज और तानाशाही अंदाज, जब हिटलर बाकी नहीं रहा, तानाशाही बाकी नहीं रहा, तानाशाह बाकी नहीं रहा, तो तुम किस खेत की मूली हो? मुल्क में आग लग रही है। अगर अब भी तुमने अपने इस हिटलराना और तानाशाही अंदाज को न बदला तो मुल्क तो तबाह होगा, लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। इस तरीके की बातें अब लोग सोशल मीडिया पर खुलकर बोल रहे हैं। सोशल मीडिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी मीडिया तो गोदी मीडिया हो चुकी है, गोद में बैठ चुकी है। जी हाँ, इसलिए ये नहीं बोलेगी। लेकिन मोदी और तानाशाह की, अमित शाह की तानाशाही देखो आप कि राना अयूब जिसने गुजरात के असल कातिलों की पोल खोली थी, तो राना अयूब का ट्विटर अकाउंट भी बैन कर दिया गया है हिंदुस्तान में। और ट्विटर को जब लिखा राना अयूब ने, तो ट्विटर ने जवाब दिया कि आपकी हुकूमत ने जो आईटी एक्ट है उसके एतबार से हमसे डिमांड किया है कि आप हमारी पोल खोल रहे हो, इसलिए आपका अकाउंट बंद कर दिया जाए। तो ये जो अंदाज़ है एक न एक दिन तमाम तानाशाहों और हिटलरों को इंशाअल्लाह ज़रूर ले डूबेगा, क्योंकि जुल्म की नाव सदा चलती नहीं।